I'm really glad that men and women and boys and girls are talking about this particular thing. They are sharing this thing in public, and यहाँ से अवेयरनेस स्टार्ट होती है. सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये पहला स्टेप लिया जा रहा है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट सर्टन थिंग्स. बट the road is quite long abhi, and we have to start with our families, with ourselves first. Yesterday when I was surfing Twitter, I came across a hashtag boys locker room, and to be honest I just skipped it at first. मुझे लगा क्या चीज़ है, I don't know really about, so I skipped it. But eventually I started seeing people posting about it, and then I finally opened up the hashtag. What was it really about, boys locker room? And then I saw some screenshots of people sharing screenshots of boys talking about really heinous things. And the problem here is that those are the boys who are studying in a school in Delhi, and there are a group of boys basically who are talking about, who are sharing pictures of women, who are sharing pictures of their female friends, and then making really really weird comments about it. And that's not it. The biggest problem here is that the kids there in that group on Instagram are as young as 13-year old, and they're talking about as major things as a rape. So where does it really start from, and what is the biggest cause of it? Because ये चीज़ें of course ये आज दिख रही है हमें, but it's not necessarily कि आज ही हुआ है. It's something जो चलता आ रहा है बहुत दिनों से, and हमेशा हम उसे इग्नोर करते रहते हैं because it's something जो हमारी values में है inscribed, and until unless we understand those values we won't be able to change it. So it's important for you to understand the role that you can play here to bring across a change in the world. So I've always said this, and I'll say it again, that you are an independent being, but you're a very, very important part of the world, because you all alone is just you. But when you belong to a family, जब आप किसी फैमिली पर बिलोंग करते हो, आप जब किसी चीज़ से बिलोंग करते हो, then you become a family. That a couple of families become a society, and those society eventually become the world. So you have a very important role to play in the world that we really make. So it's important for you to bring across change. It's important to you to first understand and realize कि क्या सही है क्या गलत है, and only then we would be able to work on things that we really want to. So ये एक ऐसी चीज़ है जो सेक्शुअल, सो ये जो ऐसी चीज़ है जहाँ पे बॉयज़ लाइक 13 ईयर ओल्ड ऐसी ऐसी बातें करते हैं एंड मेकिंग सच वियर्ड कमेंट्स ऑन गर्ल्स एंड शेयरिंग पिक्चर्स विदाउट देयर अप्रूवल. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली स्टनिंग फॉर एवरी वन अराउंड अस, इन फैक्ट इवन फॉर देयर पेरेंट्स आई एम श्योर. बट इसे करेक्ट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज ये ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी स्टार्ट हुआ है, और ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी ख़त्म भी हो जाएगा. इट हैज़ इस रूट बहुत पहले से, एंड इसे ख़त्म करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा. बट इफ़ यू स्टार्ट टुडे, एटलीस्ट वुड डू इट सूनर. तो उसे स्टार्ट करने के लिए पहले समझते हैं कि वो स्टार्ट कैसे हुआ था. ये स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ अ प्रीवियस कंडीशनिंग मेथड्स. जो हमारा प्रीवियस वेज था, जब हम एक्चुअली समझते थे कि मेन आर सुपीरियर देन वुमेन. ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, बहुत जनरेशन से सुनते आ रहे हैं, दैट मेन आर ऑलवेज सुपीरियर टू वुमेन. एंड ये एक ऐसी बिलीफ है जिसके साथ साथ हम बड़े होते गए, बड़े होते गए. And then when you finally realize, when you're born up to a particular belief that okay, men are superior than women, then you obviously feel that you are much more dominant than them. And then you would obviously feel कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जितनी मेरी होनी चाहिए. एंड हेंस वहाँ पर ही जब इंसान खुद बिलीव करता है कि आई एम सुपीरियर दैन समवन एल्स, तो वहाँ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाती है. तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी को कुछ करेक्ट करना है तो ये समझना होगा कि नो वन इज सुपीरियर दैन एनी वन एल्स. Both men and both women have a very important role to play in the world, and without any of the species, without any of the genders, हम लोग वो नहीं बन पाते जो आज है. So both man and woman come together to form the world together. तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि नो वन इज सुपीरियर टू एनी वन एल्स. एंड ये चीज़ें आप जब समझोगे तो आप अपनी फैमिली वालों को बताओगे, आप अपनी फैमिली में जब इंस्क्राइब करोगे वैल्यूज़, सोसाइटी में आएगी वैल्यूज़, एंड देन इवेंचुअली द वर्ल्ड वुड चेंज फॉर गुड. तो सबसे पहले आप ये खुद समझो कि आप और कोई और इंसान या कोई और औरत, एवरी वन सिमिलर टू यू एज वेल. तब यहाँ पे जब आप खुद ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करोगे किसी की, तो आपकी फैमिलीज़, आपके फ्रेंड्स वो भी करेंगे इस चीज़ को, वैल्यूज़ को. अब एक और बात करनी है मुझे ये चीज़ कि ये आ कहाँ से रहा है, वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम. लाइक ऐसे पहले तो कुछ वैल्यूज़ हम हमेशा जनरेशन से सुनते आ रहे हैं. सेकेंड थिंग इज़ अबाउट आवर मूवीज़ एंड द बुक्स. तो वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ मूवीज़ एंड लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन इंटरनेट, एंड ऑब्वियसली इट्स अ फ्री स्पेस. लोग एवरी, इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जहाँ पर लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं.
बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी चूजी ऑफ वॉट वी अलाउ टू गेट इन आर हेड, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें ऑब्वियसली इट लुक्स गुड इन कैमरा, इट लुक्स गुड ऑन कैमरा एंड इट सेल्स रियली वेल बिकॉज इट रेजोनेट्स विद पीपल। तो अगर आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे एवरी वन इज़ टॉकिंग मेकिंग ल्यूड कमेंट्स ऑन वुमेन, एंड एक ऐसी मूवी आती है एंड एक ऐसी मूवी आती है जहाँ पे उसी चीज़ को रिप्लिकेट किया जाता है, उस सोसाइटी की चीज़ों को रिप्लिकेट किया जाता है, तो मूवी बहुत अच्छी चलती है। वी नो सम एग्जाम्पल्स, वी ऑल नो सम एग्जाम्पल्स। तो ये चीज़ों को पहले हमें खुद समझना पड़ेगा कि ऐसी मूवीज़ को वी मस्ट नॉट ट्राई टू अलाउ, बिकॉज और ऑफ कोर्स वी कैनॉट स्टॉप द मूवी, बट यू कैन चूज नॉट टू वॉच दोज काइंड ऑफ मूवीज विद आवर फैमिलीज विद आवर फ्रेंड्स, बिकॉज जितने ज़्यादा हम इस चीज़ को अलाउ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठती जाएगी, हमारी सोसाइटी में वो बैठती जाएगी, एंड इट वुड बी रियली हार्ड टू गेट इट आउट। थर्ड थिंग अगेन क्यों होता है ये चीज़ इज़ बिकॉज ऑफ द थिंकिंग ऑफ मेन एंड बॉयज़ इन आवर फैमिलीज कि दे हैव टू बी अग्रेसिव, दे हैव टू एक्ट इन सर्टन वे टू बी कॉल्ड अ मैन। तो ये दिमाग में उनके बैठ जाता है ये चीज़ कि टू बी इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ मैन, इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ मैन और अ बॉय, they have to do certain things, and those things could be being overly aggressive or making lewd comments or sexual comments on women or doing things like that, and hence they believe that I am doing this, that's what makes me a man. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें आ रही है बिकॉज ऑफ द मूवीज़, मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली वैल्यूज, मे बी बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स दे हैड एज वेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ऑफ कोर्स फॉर यू टू इम्बार्क दैट इन योर फैमिली एज वेल, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली के कुछ मेम्बर्स ऐसे जगह पड़ जाते हैं, ऐसे फ्रेंडशिप से पड़ जाते हैं जहाँ पे वो गलत वैल्यूज़ को एक्वायर कर रहे होते हैं, ऐसी वैल्यूज जहाँ पे उन्हें बिलीव कराया जा सकता है कि यू हैव टू एक्ट इन सर्टन वे टू बी कॉल्ड अ मैन और वुमेन। जब ये फीलिंग और ये जो बिलीफ अपने अंदर आ जाती है उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू टॉक टू आवर किड्स, टू बी एबल टू टॉक टू आवर फैमिली मेम्बर्स, कि वो अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को बात कर सके आपसे, बिकॉज अगर वो आप उन्हें एक स्पेस नहीं दोगे बात करने का, तो दे वुड ऑलवेज गो समवेयर एल्स टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, एंड दैट थिंग कुड बी राइट और कुड बी रॉन्ग। सो एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली member of any particular family, it's your duty to be able to give your kids, to be able to give your small family members a chance to speak about certain topics. And of course another thing about men being emotionally dumb is something that really needs to be addressed, because बचपन से हमें बताया जाता है कि for you to be called a man, for you to be called a boy, you must not cry, you must not talk about your emotions, and if you do, you will be called a woman. So this is something again has a very very important impact on how they behave, because most of the men that you know might be aggressive, might be rude, might be engaging into quite of negative things. And why is that? It's because emotions can never be controlled, emotions can never be let go of, emotions हमेशा रहेगा ही, that's a very natural thing for everyone to have. बट जब हम इमोशन को सप्रेस करते हैं, जब किसी भी अमाउंट ऑफ इमोशन को हम सप्रेस करते हैं अपने अंदर, तो किसी और फॉर्म में बाहर निकल जाता है वो चीज़। For example, if you are feeling sad at some point and then you are constantly suppressing the sadness inside you and किसी से बात नहीं करोगे because you are scared that आपको लोग वुमेनली बोलेंगे, तो आप किसी से बात नहीं करते इस बारे में, उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर वो बैठी रहेगी वो सैडनेस, आप किसी से बात नहीं करो इस बारे में, एंड दैट वुड कम आउट इन एंगर, दैट वुड कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एंगर और एक्सट्रीम वायलेंस, and that thing would harm you and would harm the people around you as well. So it's important for us to give ourselves a space to talk about our emotions, and also give the people around you, your family members, a space to talk about their emotions. So if a man shows their emotions doesn't make them any less man than who they really are. So ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ को काम करने के लिए, बिकॉज जब तक ये चीज़ हम लोग एक्ट नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ समझेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें कल्टिवेट नहीं होगी वैल्यू सिस्टम में हमारे, एंड जब तक हमारी वैल्यू सिस्टम में ये चीज़ आएगी नहीं, तब तक लाइफ में या वर्ल्ड में कोई चेंज नहीं आने वाला। सो मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस, मेक श्योर यू वर्क ऑन दिस, बिकॉज द चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ यू, यू आर द you are the first person to change, you're the first person who can bring across a change in this world, and with understanding, with some efforts, you can always build a better world for yourself. And I'm really glad that some people are really talking about these things, बिकॉज ये एक फर्स्ट स्टेप है। जब आप बात करना स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी एक सिस्टम के बारे में जो कि हार्म करे सोसाइटी को, आई एम रियली ग्लैड दैट मेन एंड वुमेन एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दे आर शेयरिंग दिस थिंग इन पब्लिक, एंड यहाँ से अवेयरनेस स्टार्ट होती है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये पहला स्टेप लिया जा रहा है टू मेक पीपल अवेयर अबाउट सर्टन थिंग्स, बट the road is quite long abhi, and we have to start with our families, with ourselves first,
to make sure the world we are living in a much much better, in a much much kinder place. Thank you.